Dear student, good morning once again. We are here in live class. This is the social class for standard 7 and you are learning your chapter changing faces of the earth. Okay. Before starting the chapter, you have got your examination schedule and all you know very well that your examination is going to start from 12th of September, right? So today, first I will revise the chapters which is coming, which is in your syllabus in term first examination. From the history, I will ask chapter number 1 and 2, and from geography, I will ask 1 and 2. And also from civics I will ask chapter number 1 and 2. All the paper will be MCQ styles. Okay. Total number of questions will be 50 and time will be the 1 hour. Okay. And you will only tick the right answers and after that you will submit, and with the submission you will get your marks on the screen. Okay, so look at here in history, page number 1. Your chapter number 1 is when, where, and how. Okay, so look at here. Choose the correct answer. The main event which marked the end of the ancient period of Indian history was the death of Hars, the invention of writing, the arrival of Babur, the rise of Bhakti movement. तो इसमें right option है the main event which marked the end of the ancient period of Indian history was the death of Hars. Okay, death of Hars is the right answer. Up the Turks and Afghans arrived in India through the mountain passes in the northeast of the country, the southeast of the country, the northwest of the country, the southwest of the country. Right answer is second A, northeast of the country. Okay. The Indian subcontinent was referred to as Bharatvarsh in. Okay. Number 1, Manu Smriti, Persian literature, the Indica, the Puranas. तो इसमें जो है Purans. Okay. थर्ड का D ऑप्शन राइट है. फोर्थ क्वेश्चन इज द स्टडी ऑफ कोइंस इज कॉल्ड epigraphy, calligraphy, archaeology or numismatics. So our right answer is numismatics. 4 का D. Fifth है Abul Fazl was the author of Prithviraj Rasu Rihala की बाबरनामा की अकबरनामा. तो फिफ्थ का D ऑप्शन is the right answer, अकबरनामा. The travels of Marco Polo was originally written in Persian, Italian की French और अरबी. फ्रेंच, इसमें कौन सा राइट ऑप्शन है? फ्रेंच. ओके. नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स. द medieval period of Indian history stretches from around 700 century to 1700 century. Okay. When events are arranged in dash order, they are arranged in the order in which they happen over time. इसमें आपको chronological chronological फिल करना है. ओके. थर्ड देखिए, in Persian and Arabic literature, the Indian subcontinent is referred to as dash Hind or Hindustan. Hind or Hindustan. Okay. Fourth is dash is the author of Vikramadeva Charitra, Bilhan, Bilhan, Bilhan. Fifth is the bronze statue created during the rule of the dash are some of the best example of medieval Indian sculpture. चोल क्या है? इसमें चोल आपको फिल करना है, CHOLA. राइट. इसी के साथ साथ एक्सप्लोरिंग न्यू वर्ड्स पर भी आपको लर्न करने हैं. एक्सप्लोरिंग न्यू वर्ड्स से MCQs कैसे बनेंगे? लुक एट हियर. जैसे सपोज दैट हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स इज नोन एज. ठीक है. तो इसमें एक ऑप्शन आपका दिया रहेगा स्टेटमेंट
एमसीक्यूज एक्सप्लोरिंग न्यू वर्ड है. ओके, इसमें सपोज दैट इसको एक्सप्लोरिंग न्यू वर्ड्स को लर्न करने हैं, चैप्टर रीड करना है, उसके साथ ही साथ आप एक्सरसाइज इसकी मैच कर लीजिए. चूज द करेक्ट आंसर. द कैपिटल ऑफ हर्षवर्धन एम्पायर, कन्नौज इज द राइट आंसर. द रूलर एस्टेब्लिश्ड कंट्रोल ओवर कन्नौज इन 1836 century is मिहिर भोज. सेकंड का डी ऑप्शन इज द राइट आंसर. द पाल डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय गोपाला. शाहनामा वाज ऑथर्ड बाय, है ना, किसने लिखी शाहनामा? तो इसमें फिरदौसी, यानी कि फोर्थ का डी ऑप्शन इज द राइट आंसर. राजेंद्र चोल शिफ्टेड द चोल किंगडम फ्रॉम तंजावर टू गंगईकोंड चोलपुरम, है ना, गंगईकोंड चोलपुरम इज द राइट आंसर. ओके, यानी कि फिफ्थ का ए. अब है फिल इन द ब्लैंक्स. नागभट्ट फर्स्ट वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ द डैश डायनेस्टी. तो गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी, गुर्जर प्रतिहार. द इवेंट ऑफ पृथ्वीराज चौहान रीजन हैव बीन immortalized by Chauhan's court poet Dash Chand Bardai in the poem Prithviraj Raso. Okay, the Palas were followers of Mahayana Buddhism. महायान इसमें भरा जाएगा. महायान शाखा, बौद्ध धर्म की महायान शाखा के अनुयायी थे, पाल वंश के शासक. The Rajput dynasty was founded by दंतिदुर्ग, है ना, ये नेम था DANTIDURG, दंतिदुर्ग. तो ये फिल करना है. इसके बाद फिफ्थ फिल इन द ब्लैंक्स है. इंडिया वाज रेडेड बाय मोहम्मद गजनी ऑन सेवरल ओकेजन्स बिटवीन डैश एंड डैश 1001 एंड 1026. ये आपको फिल कर देना है. अब फिल इन द ब्लैंक्स इस तरह से आपको पूछे जाएंगे. सपोज दैट कि लिखा हुआ है द राष्ट्रकूट डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय. ओके, द राष्ट्रकूट डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय. और 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं. दंतिदुर्ग, चंद्रबरदाई, पृथ्वीराज रासो, है ना. तो इस तरह से जो है इसमें से जो भी फिल होगा उस पर आपको टिक कर देना है. ठीक है, इस तरह से फिल इन द ब्लैंक से भी आप एमसीक्यूज बनाए जाएंगे, तो उनको आपको सॉल्व करना है. अब आइए जियोग्राफी में चैप्टर नंबर 1 और 2 आना है. इसको जरा देख लेते हैं. चैप्टर नंबर 1 इज आवर एनवायरमेंट, राइट, आवर एनवायरमेंट. चूज द करेक्ट आंसर. दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ. इसमें से देखिए सबसे पहले एक्सप्लोरिंग न्यू वर्ड्स आप लर्न कर लीजिए. जैसे नंबर 1 है environment, the sum of the condition of surrounding in which organism exists. अब इसका स्टेटमेंट हमने लिख दिया है the sum of all the condition of surroundings in which organism exists. ठीक, अब इसके 4 ऑप्शन भी दे दिए. environment, natural environment, human environment, ecosystem. ठीक, तो इसमें जो सही है, जैसे environment सही है तो environment पर आप क्या कर देंगे, टिक कर देंगे. अब है चूज द करेक्ट आंसर. दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ द नेचुरल एनवायरनमेंट. स्विमिंग पूल, लेक, फॉरेस्ट, सॉइल. तो इसमें सही ऑप्शन है स्विमिंग पूल. नेक्स्ट, द परसेंटेज ऑफ द अर्थ सरफेस कवर्ड बाय द वाटर इज. कितने परसेंट कवर्ड है वाटर से? 71%, यानी कि सेकंड का बी इज द राइट आंसर. ओके, द अर्थ इज इन्वेलप्ड in thin layer of air known as dash, atmosphere, hydrosphere की biosphere की atoms. Atmosphere. Okay, atmosphere is the right answer. These are not a part of rooting trees trunk ecosystem. Mushroom, snakes, insect, algae. Algae is the right answer. Okay, to save our environment we should set up more
right. Fill in the blanks. Our environment comprises both living and non-living things, है ना, living और non-living इसमें fill करना है. Next second है the physical environment consists of the land, water and air. ये 3 आपको इसमें fill करना है. The Greek word lithos means, lithos का मतलब है stone, okay? Stone fill करिए. The biographical environment is also known as the biosphere. In an ecosystem, everything is closely interconnected. तो फिफ्थ में आपको interconnected जो है fill करना है, ओके? नेक्स्ट है, नेक्स्ट चैप्टर है आपका द इंटीरियर ऑफ द अर्थ. इसमें जैसे एक्सप्लोरिंग न्यू वर्ल्ड है, इसमें स्टेटमेंट लिखा हुआ है जैसे द थिन अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ फॉर्म द सरफेस ऑफ द अर्थ, राइट. तो इसमें 4 ऑप्शन हमने दे दिए, क्रस्ट, मेटल, कोर और मैग्मा. तो इसमें आपको क्या करना है, क्रस्ट, राइट. किस पर टिक कर देना है, क्रस्ट पर टिक कर देना है. चूज द करेक्ट आंसर. प्राइमरी रॉक्स आर आल्सो नोन एज इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स की मेटामॉर्फिक रॉक्स की मिनरल्स. तो इग्नियस रॉक्स, ओके. द ओशियनिक क्रस्ट कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड एल्यूमिनियम की सिलिका एंड आयरन, सिलिका एंड मैग्नीशियम की निकेल एंड आयरन, सिलिका एंड मैग्नीशियम. नीफी, नीफे is another name for the निकेल एंड फेरस, इसका फुल फॉर्म है. और ये कहां पर कोर लेवल में ज्यादा पाया जाता है, तो कोर का ही ये जो है क्या है, निकनेम है. रॉक्स विथ अ हाई कंटेंट ऑफ मेटेलिक मिनरल्स आर नोन एज ओर्स. ओर्स, ठीक है, ओर्स इज द राइट आंसर. फिल इन द ब्लैंक्स है. Sial is another name of continental crust, okay. It contain the mineral silica and aluminium. Continental crust, ठीक. इसके बाद it contain the minerals silica and aluminium. The innermost layer of the earth is called the core, कहते हैं, okay. Rock made of cooled magma is known as the intrusive igneous rocks. Intrusive igneous rocks, intrusive igneous rocks, okay. Next 4 है hot molten magma flowing on to the surface of the earth is called extrusive igneous rocks. Extrusive igneous rocks इसमें fill करना है. Dash, fifth है dash rocks contain fossils. Sedimentary rocks, sedimentary rocks fill करना है आपको. इस तरह से जो चैप्टर नंबर 1 एंड 2 आपके ज्योग्राफी से आने हैं वो उसकी एक्सरसाइज करनी है. अब आइए देखते हैं सिविक्स में चैप्टर नंबर 1 डेमोक्रेसी है. इस पे किस तरह से बिटवीन द चैप्टर भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए आप जो है चैप्टर को अच्छे से रीड करिए, उसे फिर से समझिए और जो मेन पॉइंट्स हैं उनको अंडरलाइन कर दीजिए. सबसे पहले इसके आपको एक्सप्लोरिंग न्यू वर्ड्स लर्न करने हैं, ओके. ये वैसे ही पूछे जाएंगे. सपोज दैट फॉर एग्जांपल स्टेटमेंट लिखा हुआ है द ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट व्हिच मेक्स लॉज इट कंसिस्ट ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ द गवर्नमेंट. तो इसमें कई ऑप्शन दिए हुए हैं, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, दलित, लेजिस्लेटर. तो इसमें जो राइट आंसर है वो है लेजिस्लेटर. तो आपको लेजिस्लेटर पे टिक करना है. इस तरह से इससे क्वेश्चन बनेंगे. आइए देखते हैं अपने एमसीक्यूज क्या है. चूज द करेक्ट आंसर. थाईलैंड इज द एग्जांपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची, ओके. दिस इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ ओलिगार्ची, एंशिएंट ग्रीस. अंडर अ कम्युनिस्ट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, B option is the right option. The means of production belong to the community. Okay. Fourth, the product, the interest of the scheduled caste and scheduled tribes, the government reserved seat for them in. Fourth का B, institutions of higher education.
थियोक्रेसी, ओके, क्या कहते हैं उसे? थियोक्रेसी, THEOCRACY इज द राइट आंसर। इसको फिल करना है आपको सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स में। जर्मनी अंडर हिटलर इज एन एग्जांपल ऑफ डिक्टेटरशिप, ओके, डिक्टेटरशिप इसमें फिल करना है। फोर्थ है द डैश इनिशिएटिव्स हैज हेल्प्ड मेनी गर्ल्स टू गेट एन एजुकेशन। तो इसमें है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, ओके। मार्क द फॉलोइंग एज ट्रू और फॉल्स, करेक्ट वंस आर फॉल्स, जो गलत है उनको सही करना है। तो इन अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची द रूलर हैज फुल अथॉरिटी। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची में ये फॉल्स स्टेटमेंट है। एब्सोल्यूट मोनार्ची अगर होगा तो उसमें जो है मोनार्च को यानी कि सम्राट को पूरा अधिकार है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल में नहीं, राइट। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसीज आर पॉसिबल ओनली इन स्मॉल सोसाइटीज, ट्रू। इंडिया एंड यूएसए आर एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी, फॉल्स है। इंडिया और यूएसए में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी फॉलो की जाती है, जिसमें पब्लिक यानी कि गवर्नमेंट फॉर्म बाय द वोटिंग, है ना। इन एन authoritarian government, rulers have all the power while the people have almost no rights and freedom. True. USSR is still the largest communist government country before its dissolution. Okay. USSR was the largest communist country before its dissolution of the government, तब ये राइट होगा, अदरवाइज ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है, ओके। अब आइए चैप्टर नंबर 2, इंस्टीट्यूशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र का संस्थागत प्रतिनिधित्व। ये चैप्टर आप रीड करिएगा, बिटवीन द चैप्टर इसमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसी के साथ ही साथ देखिए इसकी एक्सरसाइज है पेज नंबर 191 पे, ओके। तो एक्सप्लोरिंग न्यू वर्ड से आपको पता ही है कैसे क्वेश्चन बनने हैं। इसकी एक्सरसाइज देखिए। चूज द करेक्ट आंसर। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी implies every Indian citizen above the age of 18 has the right to vote is the right answer, यानी कि फर्स्ट का ए ही ऑप्शन आपका क्या है? राइट है। सेकंड में देखिए द चीफ ऑफ इलेक्शन कमिश्नर इन इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ओके, किसके द्वारा? प्रेसिडेंट। थर्ड है एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एन इलेक्शन कमीशन इज टू इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, ओके। फोर्थ है एन एग्जांपल ऑफ अ रीजनल पार्टी इन इंडिया इज द शिरोमणि अकाली दल। फोर्थ का सी क्या है? शिरोमणि अकाली दल। फिर इन द ब्लैंक्स में देखिए द प्रोसेस ऑफ इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव्स टू द लोकसभा इज कॉल्ड अ जनरल इलेक्शन। क्या कहते हैं उसे? जनरल इलेक्शन। सेकंड है द डैश इज एन ऑफिशियल हु सुपरवाइजेस द इलेक्शन प्रोसेस इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी, ओके। रिटर्निंग ऑफिसर फिल करना है इसमें। थर्ड देखिए द डैश is an independent body that conduct election in India, election commission, okay. All election campaigning has to end dash hours before the polling closes, 48 hours पहले ही जो है सारी कैंपेनिंग क्या कर दी जाती है? बंद कर दी जाती है। India followed as a dash party system whereas China has dash party system. इंडिया मल्टी पार्टी सिस्टम जबकि चाइना सिंगल पार्टी सिस्टम फॉलो करता है, ओके। मार्क द फॉलोइंग सेंटेंस एज ट्रू और फॉल्स, करेक्ट द वंस दैट आर फॉल्स, ओके। तो यहां पर देखिए वन है एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया एक्सेप्ट criminals एंड those who unsound mind is allowed to vote, false
राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन इंडिया जनरल इलेक्शन हैव टू बी हेल्ड वंस इन 7 years, फॉल्स है। भारत में इलेक्शन 5 सालों में एक बार होते हैं, तो 5 years कर लीजिए, तो ये स्टेटमेंट राइट हो जाएगा। ओके, द इलेक्शन कमीशन इज आंसरेबल ओनली द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये भी रॉन्ग है। आंसरेबल ओनली पार्लियामेंट, ओके, तो प्रेसिडेंट की जगह पार्लियामेंट कर लीजिए, राइट हो जाएगा स्टेटमेंट। नेक्स्ट है फोर्थ, द यूएसए हैज अ मल्टी पार्टी सिस्टम, द यूएसए हैज 2 party system, okay. Fifth is, the Telugu Desam party is an example of a national party या regional party। इसमें देखिए नेशनल पार्टी अगर है तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। यहाँ पर तेलुगु देशम पार्टी क्या है, एक रीजनल है ना, यानी कि क्षेत्रीय पार्टी है, ये नेशनल लेवल की पार्टी नहीं है। अगर इसमें रीजनल कर लेंगे तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू हो जाएगा। इस तरह से डियर स्टूडेंट आपने देखा कि एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू एंड फॉल्स, इन सब से एक्सप्लोरिंग न्यू वर्ड से इस तरह से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आपने इसको मैच भी कर लिया है, ठीक है। अब आप इस पूरे जितने भी सिलेबस है उसके चैप्टर रीड करिए और उन्हें फिर से समझने की कोशिश करिए। जो जो मेन पॉइंट्स है उन पर आप ज्यादा ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्लास से असाइनमेंट में आपको रोज 10 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिसको आपको करके सॉल्व करके और भेजना है, जिससे आपको एक आइडिया भी लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। ओके डियर स्टूडेंट, टुमारो वी विल डिस्कस कंटिन्यू ऑन चैप्टर नंबर 3, चेंजिंग फेसेस ऑफ द अर्थ। ओके, थैंक यू फॉर टुडे, हैव अ